a shout. Yes, thank you very much. You've been a fantastic audience so far. Well done, shabash. Enjoy. Please, Sachin, do have a seat. I think you come this way. Thank you very much for being with us, Sachin. It's an important day. You said yesterday we had the International Customs Day. Thank you very much once again for you to come here. It's special because these people, the Mumbai Customs team, the entire team, बहुत स्पेशल लोग हैं ये, क्योंकि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इनकी देश पे बहुत ज़्यादा है, प्लस ये लोग हमारी इन अ सेंस सेफ्टी भी रखते हैं. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द वंडरफुल टीम दैट वी हैव हियर? नमस्कार. नमस्कार. Extremely happy and delighted to be here, and the customs family here is in front of me, so it feels really special. I know I've got a lot of friends in the customs who come and receive me at the airport and make me feel comfortable. They're extremely hospitable and warm, so it gives me an opportunity to thank the rest of you. I think with customs and cricket, I was trying to figure out what are the similarities. What do I come and tell you what to do? I mean, you guys are experts at what you do, and I just felt that एक जो similarity होती है custom officer में और cricketer में, that I was wanting to just tell you कि we have our matches in the stadiums. You've got your matches at all the entry points in the nation. We need preparation before you play the opposition. You need proper planning. You have your meetings. हम जब बैटिंग करने जाते हैं, तो I think something which is really really important for us is to have peripheral awareness. आपके लिए भी सेम है कि आप अगर क्रिमिनल को पकड़ना चाह रहे हो तो you need to have that peripheral awareness. हम जब बैटिंग कर रहे होते हैं और जब बॉलर के दिमाग में घुसते हैं and try to figure out कि what is the bowler trying to do, where is he going to bowl the next ball, and you start reading the body language. Sometimes even while running, the bowler actually indirectly tells you कि वो bouncer में डालने वाला है या slower ball डालने वाला है या out swinger डालने वाला है, and then you set yourself up to play that shot. For you guys also to catch criminals, it is important to read body language. Now I've got, as I said earlier, I've got a lot of friends in customs and the guys who've caught criminals and looking at their body language, and it's fascinating. So I just felt, दोनों इकट्ठा, अलग-अलग profession में काम करते हैं. But the biggest thing for us is the pride that we have in serving the nation, and I feel, there is no greater satisfaction than that. And I've, as I said earlier, I've come here to thank you for everything that you do for India, because there is nothing about that. So thank you very much again. बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली. कल रिपब्लिक डे भी था, आपने प्राइड ये शब्द यूज किया. प्लेइंग फॉर इंडिया, 24 साल आप इंडिया के लिए खेले, वो जो रिप्रेजेंटिंग कंट्री का जो एक फीलिंग होता है वो कैसा होता है? ये ड्रीम बहुत छोटा था तब से शुरू हुआ. I was only 10-year-old when in 1983 India won the World Cup and I wanted to hold a trophy in my hands. तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, काफ़ी सारे challenges आए, काफ़ी सारे obstacles आए. I had a wonderful team supporting me, with me, guiding me and showing me the right path. जब इंडिया को खेला तो that is when my father told me यहाँ पे तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो रही है. यहाँ तक पहुँचने के लिए you've done everything possible. Now don't take your foot off the pedal. अभी दम लगाने का टाइम आया है. And to do everything else in life बहुत समय है.
बाकी सारी चीज़ें होती रहेगी, मगर दिस इज़ योर लाइफ. Respect cricket and there is nothing about that. And I felt उस समय मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी. I was only 16 when I played for India. And for a 16-year-old to lose his head and go completely out of control is normal. If you don't have a solid team with you, things can get out of control. And for me, I was walking out alone, but I was representing many guys who were working with me behind the scenes. Playing for India, there is nothing else I wanted in life. I wanted to become only cricketer and didn't want to do anything else in life. So nothing else excited me. I didn't want to waste my time on anything else because there was focus and I knew what my target was. The day I got my India cap and India sweater, it was the greatest moment of my life. And then, playing for India, we talk about patriotism. It multiplies many folds when you are standing there inside the stadium और जब national anthem play करते हैं. You sing national anthem and when that match happens to be against Pakistan, it feels even better. थोड़ा आपको एक पर्सनल सवाल मैं पूछूंगा जो बहुत क्रिकेटर्स को पूछना है, बहुत क्रिकेट लवर्स को पूछना है. आप जब स्टांस लेते थे ना, जब आप बॉलर डाल रहे हैं, आप स्टांस लेते थे, आप काफी ऐसे करते थे. और भी कुछ करते थे. I have a wonderful story on that. कि ये क्यों करते थे? And then you can tell that. Okay. मैं बताता हूँ, वही स्टोरी बताने वाला था, इसी की स्टोरी बताने वाला. अच्छा. I think we were playing in 95 or so, 95, 96 में, और इंडिया की प्रैक्टिस हो रही थी मोहाली में. तो मोहाली में छोटा सा हरभजन सिंह हमें बॉलिंग करने आया था. नेट में किसी ने बताया था कि ये बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है और अच्छी बॉलिंग करता है, इसके पास ड्रिफ्ट है, ये दूसरा भी अच्छा डाल सकता है. बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तो मैंने कहा कि उसे मुझे बॉलिंग करने बोलो, मुझे चेक करना है कि कैसे बॉलिंग करता है और अच्छा रहेगा, तो वी मस्ट एनकरेज दिस यंगस्टर. तो उसने बॉलिंग करनी शुरू की. तो एक दो बार मैं एक्चुअली स्टांस में भी नहीं था, जस्ट जा रहा था, और स्टांस लेने के बाद देखा तो भज्जी यहाँ पे खड़ा है. तो मैंने कहा कि क्या हुआ? नहीं पाजी, आपने कुछ कहा, मुझे कुछ बुलाया? तो मैंने कहा कि नहीं भज्जी, मैंने तो बुलाया नहीं, जा वापस बॉलिंग कर. वापस दोबारा भज्जी यहाँ आके खड़ा हुआ. तो मैंने क्या हो रहा है क्या? तो उसको लग रहा था, मैं जब हेलमेट मेरा एडजस्ट कर रहा था, मैं मेरा हेलमेट हमेशा एडजस्ट करता था ताकि वो जो ग्रिल है और ऊपर वो गैप बन जाए ताकि मुझे बॉल नजर आए ठीक से. तो मैं हमेशा बॉल खेलने के पहले ऐसे करता था. तो भज्जी को लग रहा था मैं उसे बुला रहा हूँ. तो भज्जी 2 बार मेरे सामने आके खड़ा, बोला जाओ बॉलिंग कर वापस. मैं वापस ऐसे करूँ तो आना नहीं है, तुझे बॉल करनी है. मैं यानी बॉल खेलने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं जस्ट बॉल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ वापस आना नहीं है तुझे. तो भज्जी उस दिन से वापस कभी आया नहीं यहाँ पे आके. तो फाइनली आपको पता चल गया क्या हो रहा है. ऑन अ सीरियस नोट, हमेशा आपके इंटरव्यूज में आप कहते हैं कि हार्ड वर्क इज द मेन थिंग दैट अ स्पोर्ट्समैन और एवरीबॉडी शुड डू. टैलेंट समटाइम्स इज ओवररेटेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हार्ड वर्क. तो ये वैल्यू सिस्टम है. मैंने आपको कितनी बार टूर्स में देखा है कि मैच इंडिया हार भी गई है और अकेला सचिन तेंदुलकर वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है. तो ये वैल्यू सिस्टम कब से शुरू हुआ? ये शिवाजी पार्क से शुरू हुआ? बिल्कुल, जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई तो ऑब्वियसली बड़ी सी किट बैग हम कैरी करते थे बस में, और कई बार धक्के मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम्स धक्के मिले हैं. कई बार कंडक्टर से डांट भी मिली है कि 2 टिकट निकालना, एक तो पैसेंजर की तू जगह ले रहा है. ये सारी चीज़ें हमें भी सुनाई देती थी. मगर जब एक बार ग्राउंड पे पहुंच जाते थे तो सब कुछ भूल जाते थे. इनफैक्ट मेरे समर हॉलीडेज काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे. समर हॉलीडेज में मेरा सेशन शुरू होता था ऑलमोस्ट 7:30 बजे सुबह. तो मैं 5 नेट में बैटिंग करता था. फिर मेरे लिए आचरेकर सर मैच रखते थे शिवाजी पार्क पे. शिवाजी पार्क में मैं पूरी मैच खेल ख़त्म करके 4:30 बजे मेरा ब्रेक होता था. 4:30 से 5 बजे तक
तो वहाँ सर मुझे कहते थे कि जाके एक सॉफ्ट ड्रिंक पी के आ या वड़ा पाव खा के आ, क्योंकि सर मुझे वापस अगले 5 नेट्स में बैटिंग करने के लिए कहते थे। तो वहाँ से 5 से 7 साढ़े 7 बजे तक हम नेट प्रैक्टिस करते थे। वो होने के बाद सर का एक रूल हमेशा रहता था कि ना सारे प्लेयरों ने शिवाजी पार्क की एक पूरी राउंड मारनी चाहिए। तो मुझे सर इंटेंशनली सुबह जब मैं फ्रेश होता था तो मुझे सर डिस्टर्ब नहीं करते थे। सर कहते कि इसको थकने दो, बाद में उसको पैड वगैरह पहना के राउंड मरवाऊंगा। तो मेरे 2 राउंड्स होते थे शाम को विथ पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट। हेलमेट नहीं था तभी, इनफैक्ट मैं कभी हेलमेट नहीं वहाँ पहनता था स्कूल में, मगर ग्लव्स, बैट वगैरह सब कुछ कैरी करके मुझे 2 राउंड्स मारने पड़ते थे शिवाजी पार्क के। एंड दैट इज हाउ आई वुड एंड माई डे। बट दैट वॉज बिल्डिंग द सॉलिड फाउंडेशन फॉर मी। एंड आई थिंक हार्ड वर्क यू ओनली फील कि ना आप थक रहे हो या ये हार्ड वर्क है, ये टॉर्चर है, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट। फॉर अस देयर वाज नेवर अ मोमेंट वेयर we didn't enjoy. We had lots and lots of fun. Yes, we would be tired, but never got bored of cricket. There were occasions where sir would actually get in the net and stop the net because it used to be so dark that we couldn't spot the ball. I mean, I still remember कि जो preparation होती थी, और मैं ऑस्ट्रेलिया में था और सौरव गांगुली मेरा तभी रूम पार्टनर था। 1991-92 की सीरीज थी। तो पहले सेकंड टेस्ट मैच में मैं मेलबर्न में 40 कुछ करके आउट हुआ था। एक पीटर टेलर उनका ऑफ स्पिनर था, तो उसे बड़ा शॉट खेलने के लिए कोशिश कर रहा था और आई हिट द बॉल राइट अप इन द एयर। एलन बॉर्डर टुक अ ब्रिलियंट कैच एंड दैट मेड मी रेस्टलेस। इट गेव मी स्लीपलेस नाइट्स एंड आई केप्ट कर्सिंग माई सेल्फ कि मैंने क्यों शॉट मारा, मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था, मुझे और मैच आगे लेके जानी थी और ये सब। तो आई वॉज रियली रेस्टलेस देन। एंड सिडनी में मेरी बैटिंग आने वाली थी अगले दिन, तो रात को आई बिकेम इवन मोर रेस्टलेस। एंड आई नॉर्मली मेरी हैबिट है कि मेरी मैच बैट में ऑलवेज रूम में कैरी करता हूँ और जब भी वक्त मिले तो मिरर के सामने खड़े रह के अपने ड्रिल्स करते रहता हूँ और जस्ट विजुअलाइजेशन करता हूँ। तो वहाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात के 2 बजे हुए थे। तो मैंने लाइट लगाए आस्ते से, मुझे लगा कि सौरव सोया है, अगर मैं लाइट लगा के मिरर के सामने थोड़े ड्रिल्स कर लूँगा तो ठीक रहेगा अगले दिन बैटिंग करने के लिए। तो सौरव सोया नहीं था, सौरव वॉज क्वाइटली ऑब्जर्विंग मी। और मेरे जब ड्रिल्स हुए, पूरे 1 घंटा मैंने ड्रिल्स किए और मैं सोया तभी 3 बजे रात को। अगले दिन मुझे ड्रेसिंग रूम में नींद आ रही थी, मैंने पैड्स वगैरह पहने हुए थे, मुझे नींद आ रही थी। तो सौरव मुझे देखे जा रहा था कॉर्नर से और हंसे जा रहा था। तो मैंने, ये क्यों हंस रहा है? बोले मुझे पता है क्या हुआ है पूरा। तो मैंने उसको कहा कि ओके तेरे को पता है तो फिर ठीक है, मैं अभी सोने वाला हूँ 15 मिनट के लिए, मगर अगर विकेट जाए तो मुझे जगा देना। सो आई स्लेप्ट इन द ड्रेसिंग रूम ऑन द डाइनिंग टेबल। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि यू नो प्रेपरेशन हैज टू बी देयर फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। रिजल्ट्स कभी कभी लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते, मगर हार्ड वर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और कमिटमेंट और आपके डिसिप्लिन के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। चैलेंजेस हमेशा क्रिकेटर के पास कॉन्स्टेंटली थ्रो किए जाते हैं। एज अ कैप्टन ऑल्सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, तो जब चैलेंजेस आपके पास थ्रो होते हैं और आपके पास वो उतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? चैलेंजेस तो मैं यही यंगस्टरों को कहता हूँ कि ना, डोंट शाई अवे फ्रॉम चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस आखिरी दिन तक रहेंगे आपके करियर में। Challenges, when they become your companion, they tend to listen to what you want to do. क्या बात है? So don't shy away from challenges. And there was one challenge which we actually faced when we were playing Pakistan in Toronto, when we played Sahara Cup. I was the captain. 3 of our leading bowlers got injured. I mean, Srinath was out, Venkatesh Prasad was out, and Anil Kumble was out. We went there with Devashish Mohanty, Abhi Kuruvilla, who had just played 10 months of international cricket, Harvinder Singh, who hadn't played a single game, Nilesh Kulkarni hadn't played a single game, Sairaj was, I think,
making his debut, Saurav Ganguly and Robin Singh. And we actually ended up, I still remember the press conference before the tournament. And I don't like to talk big. I feel cricket is played on the field, it's not played off the field. So I felt that, let others do as much talking as they want. We will talk on the field. And we beat them 4-1 with that. It was incredible how the team got together. So it is all about exploring new things, and when youngsters get opportunities, they should not let them go by. They should grab them with both hands, and that is what happened in Toronto, where Debashish Mohanty bowled unbelievably well. I will tell you one story about Debashish Mohanty later, but Debashish Mohanty bowled well, Happy bowled well, Harvinder bowled well, Saurav became my secret weapon, as I said that time. He bowled really well, and Robin bowled well. All of us did our jobs, and we beat Pakistan 4-1. So challenges, I feel, will be there all the way, not just on the field, but for you guys also. If you are prepared to look at the other side of the coin, there are two options. There are guys who either focus on obstacles, or there are guys who focus on finding solutions. If you find solutions, you will find a way forward, and that's what I would ask you to do. I have got this message from my father, and it worked well for me, so I'm just sharing this with you. Wow, what a lovely thought. But Mohanty story? अच्छा, वहाँ पे मोहांती को सईद अनवर हमेशा आउट होते जा रहा था, तो मोहांती की एक्शन थोड़ी फनी है, थोड़ी ऐसे ऐसे भाग के आता था और ऐसा करके कुछ डालता था. तो पहले 2 मैच में सईद अनवर उसे आउट हुआ, तीसरे मैच में भी आउट हुआ, तो चौथे मैच में आउट होने को हमारे फंक्शन था. वी वर एक्चुअली लीडिंग दैट सीरीज, वी हैड वन द सीरीज बाय देन, आई थिंक 4-0. तो हमारा फंक्शन था, तो सईद अनवर मेरे बाजू में आया और ऐसे ही हम बातें करने लगे. अच्छा आदमी है सईद अनवर. तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऐसे. तो उसने कहा कि यार ये तुम्हारा मोहांती क्या बॉलिंग करता है, कुछ पता ही नहीं चलता है. वो आता है ऐसा बॉल अंदर डालता है, मुझे लगता है अंदर आएगा, बॉल गिर के बाहर जाता है, तो एज लगती है, पीछे आउट होता हूँ. जब छोड़ने का मन करता है तो बॉल गिर के अंदर आता है, इधर LBW या होल्ड हो जाता हूँ, तो डर लगता है क्या करना है, कुछ पता नहीं लगता है. और एक तो कुछ पता नहीं लगता है, ऊपर से वो मोहांती ऐसे ऐसे भाग के आता है और मेरे को पूछता है बॉल डालने के पहले कि ऐसे एक्शन में उसकी क्या डालने वाले वो पता है. तो फिर मैं कहता हूँ कुछ नहीं पता मुझे, डाल दे बॉल. तो वो काफ़ी सारे ऐसे ऑफ द फील्ड फनी इंसिडेंसेस होते हैं. हम ऑन द फील्ड we will fight for every wicket and every run, but off the field, yeah, I mean, we spend some good time sometimes. Any interesting Inzamam story? इंजमाम के काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाँ, एक स्टोरी मुझे याद आती है जो बहुत फनी है, हमारे साथ हुई थी. पहला हाफ स्टोरी का था इंग्लैंड टीम के साथ, सेकंड हाफ था हमारी टीम के साथ हुआ. तो इंजमाम, तो आई थिंक मुझे खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा. इंजमाम बैटिंग कर रहा था और इंजमाम का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो कम बात करते हैं मगर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. तो उसने स्टेप आउट होके पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट एशली जाइल्स को बॉल मारा, सीधा स्टेप आउट होके, तो क्रीज के बाहर ही था. तो एशली जाइल्स ने जैसे पकड़ के बॉल फेंका तो इंजमाम वहीं पे सब बाजू हो गया, बॉल स्टंप पे लगा, तो इंजमाम आउट हुआ. तो ऑब्वियसली वापस ड्रेसिंग रूम तक. डिसअपॉइंटेड इंजमाम टेक सो मच टाइम, यू नो इट्स कि वैसे ही इंजमाम ज़्यादा टाइम लेते थे जाने में वापस, मगर डिसअपॉइंटेड थे तो और भी ज़्यादा टाइम लगता था. तो हमारे अगेंस्ट मैच थी और इंजमाम वापस बैटिंग कर रहा था और सुरेश रैना मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था. सुरेश रैना, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड, वेरी शार्प, एंड उसने बॉल पकड़ के, इंजमाम ने ऑफ ड्राइव मारा तो वापस क्रीज के बाहर था, तो उसने बॉल पकड़ के स्टंप पे मारा. तो इस टाइम इंजमाम ने सोचा कुछ अलग कर लूँ, तो इंजमाम बीच में और डिफेंस किया उसने, तो क्रीज के बाहर था, तो और आराम से वापस क्रीज में आया. तो हमने ऑब्वियसली अपील किया कि ना ऐसे बॉल कैसे रोक सकते हो. तो इंजमाम वाज गिवन आउट. अगेन डिसअपॉइंटेड इंजमाम स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू द ड्रेसिंग रूम. और शाम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो ही हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू कम अप विद अ ब्रिलियंट आंसर. उसको नेचुरली मीडिया ने पूछा वहाँ की, है ना, इंजी दूसरी बार आउट हो रहे हैं ऐसे कि क्या प्रॉब्लम है इन्हें.
तो ये लॉ बड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता नहीं चलता है. इफ आई लीव द बॉल आई एम गिवन आउट, इफ आई ब्लॉक द बॉल ऑल्सो आई एम गिवन आउट. तो मैंने कहा बाद में मिले तो मैंने कहा कि ट्राई गेटिंग बैक इन योर क्रीज, माइट वर्क.